السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام سننے والے سامعین سے گزارش ہے کہ میری ویڈیو اچھی لگے تو میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب لازمی کریں، شکریہ۔ میں ایک یتیم بچی تھی، چچا کے گھر پرورش پائی اور ان کے ہی بڑے بیٹے سے میری شادی ہو گئی۔ گھر کی لڑکی گھر میں رہی، میری زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ جیسے پہلے تمام گھر کا کام اور ہر ایک کی خدمت کرتی تھی، ویسے ہی شادی کے بعد بھی کرتی رہی۔ میرے شوہر کا نام ایوب تھا، وہ بہت سادہ دل تھے اور مجھ سے محبت کرتے تھے۔ ان دنوں وہ ابھی کمانے کے لائق نہیں ہوئے تھے۔ ہم اپنے سسر صاحب کے دستے نگر تھے، اسی وجہ سے گھر میں میری اور میرے شوہر کی حیثیت کم تھی۔ مجھے ان سب کی خدمت میں سکون ملتا کیونکہ یہ میرے اپنے تھے۔ ہمیں چچا جان کا ہر حکم اور فیصلہ بلا چوں چرام ماننا پڑتا تھا۔ میری عمر صرف 12 برس تھی جب میری شادی ہوئی۔ بس ایک دن سرخ جوڑا پہن کر میں پلنگ پر بیٹھی، اگلے روز چچی نے کہا، بیٹی یہ کپڑے اتار کر الماری میں رکھ دو، قیمتی ہیں، خراب ہو جائیں گے، اور یہ سادہ جوڑا پہن لو۔ کچن کا کام تو تم نے ہی کرنا ہے، پلنگ پر بیٹھی رہو گی تو کام پڑا رہے گا، اسے کون نپٹائے گا؟ میں سمجھ گئی کہ میرے کیا فرائض ہیں، ان سے روگردانی کا تو میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی، یوں بھی میں کم سینی سے ہی ان کے دباؤ میں تھی۔ انہوں نے میرے ذہن کو یوں اپنے قابو میں کیا تھا جیسے کوئی نازک سی پری کسی جن یا دیو کے قبضے میں ہوتی ہے۔ بے شک وہ مجھ سے بہت کام لیتی تھی، لیکن اتنی بری عورت بھی نہیں تھی۔ انہوں نے کبھی مجھے کھانے پینے میں تکلیف نہیں دی، بیمار ہو جاتی تو علاج معالجے میں کوتاہی نہ کرتی تھی، لباس بھی اچھا پہناتی تھی اور اکثر و بیشتر پیار سے بات کرتی تھی۔ مجھے ان سے کوئی شکایت نہ تھی۔ جب میرے میاں کمانے کے لائق ہو گئے تو میری بھی اس گھر میں حیثیت بن گئی۔ ہمارا گھر اب خوشیوں کا گہوارہ تھا۔ اولاد کی کمی کے باوجود انہوں نے دوسری شادی کا نہ سوچا۔ ہم نے اولاد کی خاطر کیا جتن نہیں کیے، کوئی حکیم ڈاکٹر نہ چھوڑا، منتیں مرادیں دربار درگاہیں، غرض جہاں کوئی بتاتا ہم وہاں چلے جاتے۔ ہم نے ابھی تک امید کا دامن تھام رکھا تھا۔ ان دنوں میرے شوہر کے پاس موٹر سائیکل تھی۔ ایک رات سونے سے قبل میں نے انہیں تکلیف سے کراہتے دیکھا۔ وہ بولے، آج میں موٹر سائیکل پر جا رہا تھا کہ اچانک ایک گلی سے ایک لڑکا نکلا اور میری موٹر سائیکل کے سامنے آ گیا۔ اس کو بجاتے ہوئے میں خود زخمی ہو گیا۔ یوب کی تکلیف پر دل کانپ گیا۔ میں رونے لگی تو انہوں نے کہا، ابھی تو تم میری ذرا سی تکلیف برداشت نہیں کر پا رہی ہو، اگر میں مر گیا ہوتا تو پھر کیا کرتی؟ میں نے ان کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا، خدا نہ کرے اب ہمیشہ سلامت رہیں، میں پہلے مروں گی۔ پھر ہم نے کہا، ہم اکٹھے جئیں گے اور اکٹھے مریں گے۔ وقت گزرتا رہا۔ اس واقعے کے تیسرے سال اللہ تعالیٰ نے میرے حامد کو کاروبار میں اتنا منافع دیا کہ انہوں نے ایک نئی گاڑی خرید لی۔ ہم اس نئی گاڑی میں کسی کی بتائی ہوئی جگہ پر گئے، بچے کے لیے دعا مانگی اور وہاں ایوب کے دوست کے ہاں ایک دن ٹھہر گئے۔ میرے شوہر کو مجھ سے اتنی محبت تھی کہ جہاں ہم جاتے، ایوب نہ صرف بہت اصرار کرتے بلکہ سب سے اچھا سوٹ پہننے کو کہتے۔ اس دن بھی میں نے سب سے اچھے کپڑے پہنے اور کافی زیور پہنا ہوا تھا۔ میری نند بھی ساتھ تھی۔ ایک جگہ گاڑی کھڑی کر کے ہم نے کولڈ ڈرنک پی، ہنستے مسکراتے خوش خوش واپس آ رہے تھے کہ اچانک ایک تیز رفتار ٹرک سامنے آ گیا۔ مجھے بس ایک دھماکہ سنائی دیا، اس کے بعد مجھے نہیں معلوم کہ کیا ہوا۔ میرے شوہر کا تمام جسم گاڑی میں پھنس کر زخمی ہو چکا تھا۔ انہیں رک رک کر سانس آ رہا تھا۔ مجھے بھی کافی چوٹیں آئی تھی، زخموں سے خون بہہ رہا تھا اور میری سانس بھی برائے نام چل رہی تھی۔ البتہ میری نند جو پچھلی سیٹ پر بیٹھی تھی، اسے بہت معمولی چوٹیں لگی تھی، وہ پوری طرح ہوش و حواس میں تھی۔ جائے حادثہ پر بہت لوگ اکٹھا ہو گئے۔ ہمارے پیچھے ایک گاڑی آ رہی تھی جس میں میاں بیوی سفر کر رہے تھے۔ در حقیقت انہی لوگوں نے ہماری مدد کی، وہ ہمارے محسن تھے۔ انہوں نے اپنی کار روکی اور ہمیں کچھ لوگوں کی مدد سے نکالا۔ انہوں نے دیکھا کہ میرے شوہر کی سانس باقی ہے، جبکہ بے حس و حرکت ہونے کی وجہ سے میں تقریباً مر چکی تھی۔ وہ ہمیں جلد از جلد ہسپتال لے گئے۔ اس عورت نے کسی کو بھی ہمارے قریب نہ آنے دیا اور تمام زیور اور گھڑی اتار کر پرس میں رکھ لی۔ لوگوں کی مدد سے کار میں ہمیں ڈالا اور پولیس کی کارروائی کا انتظار کیے بغیر ہسپتال لے گئے۔ یہاں میرے شوہر اور میں انتہائی نازک حالت میں ظاہر کر لیے گئے، جبکہ میری نند کی مرہم پٹی کر کے اسے رخصت کر دیا گیا۔ میری نند نے گھر فون کر کے اطلاع دی۔ اطلاع ملتے ہی گھر والے ہسپتال آ گئے۔ شاید میرے شوہر کی سانسیں گھر والوں کے انتظار میں ہی کمزور ہو گئی تھی۔ ان کے آتے ہی انہوں نے دم توڑ دیا۔ اب ڈاکٹروں نے میری جان بچانے کی ہر ممکن کوشش کی۔ ان محسنوں نے تمام زیور اور سامان میرے گھر والوں کے حوالے کیا۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں یادداشت کھو چکی تھی۔ سب گھر والے میرے گرد جمع تھے۔
मगर मैं उन्हें पहचान न पा रही थी। डॉक्टरों ने हर मुमकिन कोशिश की कि मेरी याददाश्त लौट आए। अगरचे मैं मैट्रिक पास नहीं थी, लेकिन मेरा ज़हन इस तरह काम कर रहा था जैसे किसी आला तालीम याफ्ता आदमी का ज़हन होता है। इस तब्दीली पर सब ही हैरान थे। 1 माह तक मेरी याददाश्त गुम रही। मैं बेतहाशा खमियाजा भुगत रही थी। बाजुओं का डॉक्टर ने 3 बार ऑपरेशन किया। आहिस्ता आहिस्ता जख्म अच्छे होने लगे। उस वक्त तक मुझे इल्म नहीं था कि अयूब फौत हो चुके हैं। घर वाले मुझे बताते भी नहीं थे और ना ही मैं समझ सकती थी। डॉक्टरों ने मेरे घर वालों को मशवरा दिया कि वो मुझे दिमागी अमराज के माहिर डॉक्टर के पास ले जाएं, तो शायद मेरी याददाश्त लौट आए। मेरी नंदे साथ थी। कार में हम जा रहे थे कि अचानक सामने एक तेज रफ्तार ट्रक आ गया। कार को एक जोरदार झटका लगा और मुझे महसूस हुआ जैसे मैं अभी नींद से जागी हूँ। यकदम ही मुझे होश आ गया। मैंने हैरान होकर इधर उधर देखा। कार चल रही थी। मेरी नंदे मेरे गिर्द बैठी थी। मैंने उनसे पूछा, गाड़ी तो अयूब चला रहे थे, वो कहाँ हैं? अचानक मेरी याददाश्त लौट आई थी। मुझे वो खौफनाक हादसा याद आ गया। बहनों से पूछा, हम कार में कहाँ जा रहे हैं और मेरा शौहर कहाँ है? उन्होंने बताया कि वो कार के हादसे में जख्मी हो गए थे और अभी तक अस्पताल में हैं। उन्होंने ये मुनासिब ना समझा कि दौरान सफ़र मुझे इस दर्दनाक हकीकत से आगाह कर दें कि अयूब फौत हो गए हैं। अलबत्ता उन्होंने ये बता दिया कि मेरी याददाश्त खो गई थी और मुझे इलाज के गर्ज से अस्पताल ले जा रहे थे। मुझे पता चला कि मैं 2 माह तक होशो हवास से बेगाना रही हूँ, तो बहुत हैरान हुई। मेरी यादों की जंजीर याददाश्त के लौट आने तक महदूद थी। अब मैं नॉर्मल बातें कर रही थी, सबको पहचान रही थी। इसलिए घर वाले अस्पताल ले जाने के बजाय घर ले आए। मुझे अपने महबूब शौहर की मौत के सदमे से बहाली में 1 साल लग गया। साल भर तक मेरे ससुराल वालों ने कुछ न कहा। उसके बाद इनका रवैया बदलने लगा। नंदे मुझे फालतू शय समझने लगी, क्योंकि अब मुझे पहले जैसा कामकाज करने से भी कासर थी। हादसे की वजह से बाजुओं की हड्डियां टूटी थी, इसलिए मैं ज़्यादा कामकाज नहीं कर सकती थी। सास मुझको देखते ही ठंडी आंखें भरने लगती थी, क्योंकि उन्हें अपना मरहूम बेटा याद आ जाता था। चचा का ख्याल यह था कि मेरी शादी कर दी जाए ताकि बाकी ज़िंदगी का कोई आसरा तो हो। अब तमाम घर वाले इसी कश्मकश में थे कि मेरा क्या करें। मेरी कोई औलाद भी नहीं थी जिसके सहारे बाकी ज़िंदगी काट लेती। मैं ज़्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं थी कि कहीं मुलाजमत कर लेती। बेकार आदमी किसी को भाता नहीं, वो तो एक मुस्तकिल बोझ होता है। अब सिवाय देवर के घर में किसी को मेरा ख्याल ना था। हैरान थी कि जिस घर को पैदाइश के वक्त से अब तक अपना घर समझती आ रही थी, अब वही मेरा नहीं रहा था। अपने ही घर में मैं अजनबी बन गई थी। मुझे अजनबिया से दो चार करने वाले कौन थे? वही लोग जिन्हें मैं अपना कहती थी और अपना समझती थी। यह सूरत हाल मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त होती जा रही थी, लेकिन मैं मजबूर थी। दूसरी शादी का तसव्वुर भी नहीं कर सकती थी। मुझे अपने मरहूम शौहर से इतनी ही मोहब्बत थी कि अब तो इनकी यादें ही मेरी ज़िंदगी का सहारा थी। चचा भी अजब गोमगो की कैफियत में थे। एक तरफ बेटे की मौत का सदमा था और दूसरी जानब भतीजी की आइंदा ज़िंदगी की फ़िक्र। अभी मेरी नंदों की शादियां भी होनी थी। ये लोग मेरी दोबारा शादी के तज़किरे करने लगे थे। एक तो शौहर की मौत का इतना सदमा था कि जाने मैं जिंदा किस तरह थी। मेरी तो दुनिया उल्ट गई थी। एक लम्हे में सब कुछ बदल कर रह गया था। मुझे चुप सी लग गई। सोच भी नहीं सकती थी कि ऐसा हो जाएगा। मेरे ससुराल वाले जाने क्यों इतने परेशान थे। उन्हें दिन रात एक ही बात सोचती थी, अब इसका क्या बनेगा, ये ज़िंदगी कैसे गुजारेगी। सिर्फ एक मेरा देवर ऐसा था जो कहता था, उसके हाल पर छोड़ दो, जो इसका नसीब होगा वही हो जाएगा। आप लोग क्यों इसको परेशान करते हैं। जब मैंने देखा कि इस घर में एक देवर ऐसा है जो मेरे बारे में हमदर्दी से सोचता है, तो मैं इसे अपना हमदर्द समझने लगी। सोचती थी कि घर में बस एक इंसान ऐसा है जिसको मेरे दुख का एहसास है, और वो मेरा देवर था। वो नहीं चाहता था कि मेरी मर्जी के बगैर कोई मुझे दर बदर कर दे। वो कहता था, ये घर जहरा का है, जैसे पहले था वैसे ही अब भी है। अगर किसी ने इसकी कफालत का बोझ समझा तो मैं इसकी कफालत करूंगा। याकूब की बार बार हमारे से घर वालों का जहन दूसरी तरफ चला गया। वो समझने लगे कि वो मुझसे शादी करना चाहता है। जब ये ख्याल इन लोगों के जहन में आया तो बात जुबान पर भी आ गई। इस बात का सुनना था कि दिल को धचका लगा। मैंने कहा, अब ये जुल्म भी मुझ पर होना था। मैं तो याकूब को अपने छोटे भाई की तरह समझती थी, और आप लोगों ने ऐसा कहकर मेरा कलेजा ही निकाल लिया है। मेरे रोने और दुख करने पर याकूब ने तसल्ली दी कि तुम कुछ भी मत सोचो, और जो दूसरे सोचते हैं उन्हें सोचने दो।
हर इंसान को अपनी समझ के मुताबिक सोचने और अपनी सूझबूझ के मुताबिक बात करने का हक है। पहले तो मेरी सास इस बात का बेहद बुरा मनाती थी कि याकूब क्यों मेरी हिमायत करता है और मुझसे हमदर्दी करता है। लेकिन बाद में जब चचा ने बच्चियों को समझाया तो वो किसी और ही सच पर सोचने लगी। एक दिन जब मैं बुहार में पड़ी फनक रही थी, वो मेरे कमरे में आई। हमदर्दी से मेरे माथे पर हाथ रखकर बोली, बेटी, मैं कब चाहती हूँ कि तुम हमारे घर से कहीं और जाओ। अगर तुम मान जाओ तो हम तुम्हारी शादी याकूब से करने को तैयार हैं, क्योंकि रात तुम्हारा हामद मेरे ख्वाब में आया था। उसके हाथ में फूल थे। उसने मुझसे कहा, माँ, यह फूल याकूब और ज़हरा को दे दो। उस ख्वाब से मैंने यही मतलब निकाला है कि तुम्हारी शादी याकूब से कर दूं, ताकि तुमको अपना घर छोड़कर कहीं न जाना पड़े। एक तो बाहर की गर्मी मेरे वजूद को जला रही थी, ऊपर से सास ने ऐसी बात कही, मैं जन्म जैसे अलाव में जलने लगी। मैंने सास की तरफ से नफरत से मुंह फेर लिया और कहा, मुझे चंद दिन की मोहलत दे दीजिए, ठीक हो जाऊंगी तो खुद ही कहीं चली जाऊंगी। मेरा यह जवाब सुनकर वो खामोश हो गई और कमरे से चली गई। मैं सोचने लगी कि ये लोग कितने खुदगर्ज हो गए हैं। क्या इनसे मेरा कोई दूसरा रिश्ता नहीं है सिवाय बहू होने के? अगर मैं इनकी बहू नहीं रहती तो इस घर में रहने का कोई हक नहीं है। अपने कमरे में मुंह लपेटे पड़ी रहती थी और घर के तमाम अफराद साथ जोड़कर मेरे बारे में मशवरे और मनसूबाबंदियां करते रहते थे। मैंने सोच लिया था कि इन लोगों का साथ नहीं दूंगी। ये घर छोड़ना पड़ा तो चली जाऊंगी। 6 माह तक अंदर ही अंदर खिचड़ी पकती रही। इसने मुझे कुछ ना कहा। एक दिन चचा और चची आए और कहने लगे, बेटी, हम तेरे बुजुर्ग हैं, ये तो तुम मानती हो। हम ये नहीं चाहते कि तुम हमारा घर छोड़कर किसी और घर जाओ। पहले तो हमारी बहू थी, अब बेटी भी। तुम्हारे बारे में सोचना हमारा फर्ज है। हमने याकूब को समझाया है और वो मान गया है। अब तुम भी मान जाओ, ताकि 2 बोल निकाह के पढ़वा कर हम एक तरफ हो जाएं और बड़ा बोझ हमारे सर से उतर जाए। इस वक्त मैंने इनसे उलझना मुनासिब ना समझा। बस इतना कहा, आप मुझे 2-4 दिन सोचने की मोहलत दीजिए। दिल में ठान लिया अब इस झगड़े को ख़त्म कर दूंगी। कुछ खाकर जिंदगी ख़त्म कर लूंगी या घर से निकलकर किसी दारुल ईमान में जाकर पनाह ले लूंगी। उस रात बहुत रो रो कर दुआएं मांग कर सोई कि अल्लाह, तू ही मेरी रहनुमाई कर, मुझे कोई अच्छा रास्ता समझा दे। याकूब से तो शादी का सवाल ही पैदा नहीं होता। आधी रात तक करवटें बदलती रही। न जाने रात के कौन से पहर नींद आ गई। क्या देखती हूँ कि आपके अय्यूब ख्वाब में आए। इनके हाथों में फूल हैं। उन्होंने कुछ फूल मेरी झोली में डाले और कुछ याकूब को दिए और कह रहे हैं, तुम याकूब से समझौता कर लो, मैं इसमें खुश हूँ। उस वक्त मेरी आंख खुल गई। कैसा अजीब ख्वाब था। मैं काम कर रह गई। बिस्तर पर पड़ी लर्ज रही थी, पसीना पसीना हो रही थी। कुछ अर्सा पहले यही ख्वाब मेरी सास ने देखा था और मैं समझती थी कि वो एक झूठा ख्वाब मुझे सुनाकर अपना मतलब निकालना चाहती हैं। ओ मेरे खुदा, तो क्या वही ख्वाब मेरे लाशोर ने दोहरा दिया था? वाकई ख्वाब था या वाकई ख्वाब में अय्यूब आए थे? सुबह तक मैं जागती रही और सोचती रही, यहाँ तक कि अजान की आवाज़ मेरे कानों में आई तो मैं एक हतमी फैसले पर पहुंच चुकी थी। मैंने सोच लिया कि चचा और चची मेरे बुजुर्ग हैं और उन्हें मेरे बारे में सोचने का हक है। मैंने मुकम्मल तौर पर अपने आप को इनके हवाले करने का फैसला कर लिया। जब चची ने मेरा फैसला पूछा तो मैंने उन्हें कह दिया, चची जान, जैसी आपकी मर्जी, मैं आपकी बेटी हूँ और माँ बाप बेटियों के बारे में बुरा नहीं सोच सकते। यूँ मैंने हथियार डाल दिए। उन्होंने अपने छोटे बेटे का निकाह मुझसे कर दिया। कई दिन मैं बुझी सी रही। दिल अपने पहले शोहर को बुला नहीं पाता था और देवर को बतौर शोहर ज़हन कबूल करने पर आमादा नहीं होता था। वक़्त बड़ा ताकतवर मनसब है। ये ज़ालिम जाबर हुक्मरान है, इसके सामने किसी की नहीं चलती। रफ्ता रफ्ता माजी के घाव मुंदमिल होने लगे। ज़हन ने याकूब को बतौर शोहर तस्लीम करना शुरू कर दिया। याकूब ने भी मेरी मदद की। वो मुझे समझाता, हम सब तुम्हारी बेहतरी चाहते हैं और हम सब तुमसे प्यार करते हैं। इसलिए बहरहाल जो कठिन वक़्त था वो गुजर गया। वक़्त गुजरने के साथ साथ मेरे जिस्म में तवानाई आने लगी और मैं ज़िंदगी में दिलचस्पी लेने लगी। एक दिन याकूब ने बताया कि मैंने भैया को ख्वाब में देखा था। अपने गले से फूलों का हार उतारकर मेरे गले में उन्होंने डाला था। जब यह ख्वाब देखा तो मैंने तुमसे शादी का फैसला कर लिया। ये कितनी हैरत की बात थी कि हम सब जो अपनी अपनी जगह परेशान थे और किसी फैसले पर पहुंच ना पा रहे थे, यूब ने हर एक के ख्वाब में आकर हमारी मदद की। एक शख्स का बयान झूठा हो सकता है लेकिन 3 का नहीं। तभी से मुझे यकीन हो गया कि मरने वालों का अपने प्यारों से ताल्लुक ज़रूर होता है।
بشرطے کہ ہم انہیں دل سے یاد کریں۔ رشتے نے ایک بار پھر مجھے اس گھر کے ساتھ ٹوٹی ہوئی زنجیر کو جوڑ کر جکڑ دیا۔ اگرچہ وہ حادثہ جس نے میرے شوہر کو مجھ سے جدا کر دیا تھا بھولتا نہیں ہے، میرا ذہن اب بھی کبھی کبھی ہلاؤں میں بھٹکتا ہے۔ اکثر میں چہرے بھول جاتی ہوں، لیکن میری زندگی کو نئے راستے پر ڈالنے والے میرے محسن میرے چچا اور چچی ہیں، جن کو علم تھا کہ میں باندھ ہوں۔ اگرچہ میں بعد میں یعقوب کے کئی بچوں کی ماں بنی، پھر بھی انہوں نے دوسری بار مجھے اپنے گلے سے لگایا اور میری تمام بے روحی و مخالفت کو سہ گئے۔ ورنہ جس یتیم بھتیجے کا شوہر وفات پا چکا ہو، اس سے پیچھا چھڑانا کون سا مشکل کام ہے؟ پر ہر کوئی بے رحم تو نہیں نہ ہوتا۔